السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کے ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور آج امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے رؤوف کلاشا صاحب نے. ناظرین، جب عوام ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیے گئے جو وعدے ہیں یہ پورے کیے جائیں گے، اور پھر اگر ایسا نہیں ہوتا تو لیڈرز عوام کے دلوں سے اپنی جگہ کھونے لگتے ہیں. آج ہم ایک ایسے ہی سروے سے متعلق آپ کو رپورٹ کریں گے کہ پاکستانی عوام کے نزدیک کون سا لیڈر کارکردگی کی بنا پر لوگوں میں کتنا مقبول ہے، کس نے مہنگائی کو کنٹرول کیا اور کس نے بدعنوانی کو بڑھاوا دیا، کس نے معیشت کو بدحال کیا اور کون ملکی حالات کو بہتر انداز میں چلا رہا ہے، کس وزیر اعلیٰ کی کارکردگی منفی رہی اور کس نے صوبے میں سب سے زیادہ کام کیے. اس بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آج سے مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد بازاروں سے ایک بار پھر آٹا غائب ہو گیا ہے، اور آٹے کی قلت سے غریب اور مزدور طبقہ ہی سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ہے، جو روزانہ یا ہفتے کا آٹا خریدتا ہے. اس لڑائی میں یقیناً غریب طبقہ ہی پسنے والا ہے. حکومت نے اس بحران سے نمٹنے کے لیے آخر کیا اقدامات کیے ہیں اور یہ سارا معاملہ ہے کیا، اس پر آج بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کلاسا صاحب اور قائد صاحب سے ان کی خبریں لے لیتے ہیں کہ وہ آج کیا شیئر کرنے والے ہیں. قائد صاحب سے لیتے ہیں. جی قائد صاحب. شاید سٹوری تو میں یہ کر رہا ہوں، مگر میں چاہوں گا کلاسا صاحب اس پہ بات کریں، کیونکہ جو لڑائی ہے بلند اختر رانا صاحب کی اور گورنمنٹ کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک جو ڈپارٹمنٹ کے آفیسر انہوں نے کورٹ کو بھی موو کیا ہے. کوششیں ہو رہی ہیں فائنانس ڈویژن کے انڈر لانے کی، جو ہمارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ، اور اس میں لڑائی وہی ہے جو کلاسا صاحب نے سٹوری کی تھی، 500 ارب روپیہ جو پری آڈٹ کے بغیر ہی نکلوا لیا گیا تھا. تو اس میں جو اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ادارے کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہوگا. اس پہ بات کریں گے. پی پی او کی بات کروں گا. اس کے علاوہ بہت بحث ہو رہی ہے شہر میں، پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس جو تھا وہ سینٹ میں وہ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے حسن قبہ پہ بات کریں گے. کیا خدشات ہیں، کیا ہو سکتا ہے، اور قوانین جو بنے ماضی میں اس طرح کے سخت، خاص طور ضیاء الحق کے دور میں جب قوانین بنے تھے تو خود ضیاء الحق صاحب نے فرمایا تھا جناب اب تو کرپشن بڑھ گئی ہے، کیونکہ حدود آرڈیننس سے ڈرتے ہوئے لوگ کرپشن یعنی رشوت بڑھا دیتے تھے. وہ معاملہ نہ ہو، یہ کیا خطرات ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی ایک بک آئی ہے ایک ٹامس پکٹ، جس کا یورپ اور امریکہ میں بڑا غلغلہ ہے، جس پہ بڑے بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں آج کل جو اہم لڑائی ہے وہ ہے جو غربت اور امارت کی تفریق اور دولت کا جو بود، اور چند افراد کے پاس ارتکاز دولت، یہ ایشو ڈومینیٹ کر رہا ہے. اور یہ اس کتاب میں کیا ہے اور اس حوالے سے وہاں پہ کیا بحثیں ان کے اکیڈیمکس اور ان کے سرکل میں چل رہی ہیں، عوام کے نیچے تحریک کی کیا صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، کلاسا صاحب کے پاس چلتے ہیں. ویلکم اگین کلاسا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. کیا سب کیا شیئر کریں گے امریکہ سے آپ ہمارے ساتھ؟ یہ سارے میں نے تو سوچا تھا کہ امریکہ میں آئے ہیں، یہاں پہ کچھ یہاں کی کچھ اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو بتانے والی ہے، کرنے والی ہیں، لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا اسکینڈل یہاں بھی امریکہ بھی میرا پیچھا کرتے کرتے پہنچ گیا. آج اس کی ڈیٹیلز کچھ شیئر کریں گے کہ سلمان فروخی صاحب ہیں، ہمارے وفاقی موثق ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں یہاں پہ ایف پی ایس سی کے جو چیئرمین ہیں ملک آصف حجاز صاحب. ان دونوں نے مل کے کروڑوں اور لاکھوں روپے جو ہیں، جب ایوان صدر میں یہ پوسٹڈ تھے وہاں پہ، انہوں نے غریبوں کے نام پہ جو فنڈز تھا صدر زرداری کے لیے ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، تو اس میں سے انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں، ان دونوں نے مل کے 70 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹس میں انہوں نے ٹرانسفر کیے تھے. اور ساتھ میں کچھ درجنوں افراد تھے جن کو ٹوٹل 14 کروڑ روپیہ غریبوں کے لیے فنڈ تھا جو صدر زرداری صاحب نے ان کو ایلوکیٹ کیا ہوا تھا، ان کو ملا ہوا تھا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. وہ انہوں نے 14 کروڑ روپیہ اور باقاعدہ ایدی کے نام پہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. اس کی بڑی شاکنگ ڈیٹیلز ہیں، بلکہ میں کہوں گا شیم فل ڈیٹیلز ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، چند لاکھوں کے لیے کیسے برے طریقے سے گرے ہیں. تو اس کی میں آج آپ کے ساتھ ڈیٹیلز کا شیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس ملک کی کیا بری حالت ہو سکتی ہے کہ جو جتنے بڑے عہدے پر جا رہا ہے اتنے کا شکار ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے جو بتاتی ہے ہمارے پورے کلچر کو اور مائنڈ سیٹ کو ڈسپلے کرے گی. تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے ایک گیلپ سروے ہے، اس میں عوامی رائے سے متعلق ایک سالانہ پبلک پلس رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ 2013 سے لے کر 2014 تک جو پاکستان نواز کی حکومت ہے اس کا موازنہ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور جو موجودہ ساری حکومت صوبوں میں بھی چل رہی ہے، کس وزیر اعلیٰ کی کارکردگی سب سے بہتر ہے، کون سی پارٹی لوگوں میں مقبول ہو رہی ہے، اور کس پارٹی کی مقبولیت میں، کس لیڈر کی مقبولیت میں جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کی کارکردگی میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت شاندار رہی اور پاکستانی عوام کی اکثریت نے حکومت کی کارکردگی اور پالیسیوں کو سراہا ہے. قاضی صاحب
ग्राउंड रियलिटीज देखें और लोगों के मौजूदा मसाइल देखें तो किस हद तक ऑथेंटिक कह सकते हैं हम इस सर्वे को? देखें, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी से जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं, और खासतौर पर ये जो पीपल्स पार्टी थी, तो वो इतना क्रूडली बिहेव करते हैं और इस तरह से काम करते हैं कि उसका परसेप्शन बड़ा बुरा जाता है। लेकिन अगर आप अभी से बैठ के ये देखें, ये आते हैं बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, इनकी मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है मुस्लिम लीग नून की, और हमने देखा है ये एक तासुर सीरियसनेस का देते हैं। लेकिन बात यह है कि जब तक आपके मुल्क और समाज के अंदर अच्छाई और खुशहाली की जो खबरें हैं वो अखबारों की हेडलाइनों से उतर के अगर समाज में नहीं जाती अमली तौर पे, तो ये तासुर बनते या टूटते रहते हैं। अब ये 26-2700 लोगों का सर्वे किया गया, लेकिन अगर आप हालात देखें, मसलन डॉलर तब कितने का था, अब कितने का, अब नीचे लेके आए, ये इनकी एक बड़ी बात थी कि ये इन्होंने बाकी नीचे उसको लेके आए। लेकिन इन्फ्लेशन देखें कितनी थी, पेट्रोल कितने का था तब जब ये जिन्होंने टेक ओवर किया और वो आए। तो ये सारी सूरत अगर देखें तो यूं लगता है कि ये कोई परसेप्शन ज्यादा है। और फिर 2600 लोग, याद है आपको, हमने इंडिया के सर्वे की बात की थी जो तारीख का सबसे बड़ा सर्वे था, जिसमें 2.5 लाख लोगों को सर्वे किया गया और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से किया गया था, और उन्होंने कहा था कि इंडिया में हमारा सबसे बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट है। तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसमें जो कहा गया है मैशियत, पाक भारत ताल्लुकात, मजमूई खारजा पॉलिसी, इन चीजों को अगर सामने देखा जाए तो इस लिहाज से हुकूमत की देखें जी, ये फिर आप इस तरह कर खारजा पॉलिसी में देखें ड्रोन हमले तकरीबन ही खत्म हो गए जब से मुज़ाकरात शुरू है। मैशियत को देखें, जैसे आपने डॉलर की बात की, वो भी नीचे आया। नहीं, डॉलर तो नीचे आया, लेकिन क्या पेट्रोल की कीमत नीचे आई? पेट्रोल जब आप अभी आपने कहा था कि जी पेट्रोल हम ये जो आप डॉलर नीचे आया इसके साथ उसको एडजस्ट करेंगे, बिजली की कीमतों में कोई कमी हुई? बिजली की कीमतों में इजाफा ही हुआ है पिछले दिनों में। तो बात यह है कि अमली तौर पर हाँ, मगर इनकी मैनेजमेंट जिस तरह आते ही इन्होंने अपनी रेटरिक बदली, जो इनकी रेटरिक हुकूमत पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तब इनकी रेटरिक और थी कि हम ठीक कर देंगे। फिर आके उन्होंने कहा जरा सोबर हो जाएं, हालात बड़े खराब हैं, हमें अंदाजा नहीं था। तो इनकी मैनेजमेंट वो ठीक है, लेकिन अगर जमीन पे सूरत देखें तो आम आदमी की जिंदगी में कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई पॉजिटिव। अच्छा, इमरान खान की मकबूलियत में कहा गया है कि 5% जो है वो कमी हुई है, इसकी क्या वजह? तो ये तो फिर ठीक लगता है, क्योंकि हम भी अगर किसी से पूछें तो लोग ये कहते हैं इमरान खान से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। देखिए जी, इमरान खान का मामला ये है कि जब भी आप पावर में जाएंगे तो आपके साथ ये तो होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर याद हो, हम यहाँ प्रोग्राम करते रहे कि आपको अब मैं अभी थोड़ी देर बाद अपनी स्टोरी करूंगा। आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, आज शहबाज शरीफ साहब का आप बयान देखें, शहबाज शरीफ साहब से पहले आप सिराजुल हक साहब का बयान दें जिस दिन वो बने हैं, इन बयानात को सामने रखें। तो हमारे लीडर जो सेंसिटिव है ज्यादा टू पीपल्स इश्यूज, वो उन्हें पता चल गया है कि आज वो क्या कह रहे हैं, ये जो दोहरी जिंदगी है, ये जो दोहरे कवानीन है, ये जो दोहरे मेयारात है, आज शहबाज शरीफ साहब यही बात करें। तो इस हवाले से, और आज मैं आप स्टोरी की बात करूं कि यूरोप में अगर आप देखें और अमेरिका में देखें तो कौन सी किताबें पॉपुलर हो रही हैं, कौन से थीम सामने आ रहे हैं। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि एक पूरे वर्ल्ड स्केल पे एक अहद बदलता हुआ नजर आता है, और सबसे बड़ा थीम, भले अमेरिका हो भले पाकिस्तान हो, वो इर्तिकाज दौलत का है और दौलत की तकसीम का है समाज में। अगर मैं ये नहीं कहता कि सारे बांट दें बराबर सबसे छीन लें, लेकिन लोगों को राइट्स वो तो आपको देने पड़ेंगे जो आपने। ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस सियासी लीडर की मकबूलियत में कितने फीसद कमी हुई, ये आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद, और रऊफ क्लासेस आपका भी देख लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान की मकबूलियत में 5% कमी हुई, आसिफ अली जरदारी की मकबूली में 28%, मौलाना फजलुर रहमान की मकबूलियत में 21%, असफन यार वली की मकबूलियत में 34%, जबकि अल्ताफ हुसैन की मकबूलियत में 39% कमी हुई। क्लासेस साहब, कितनी अहमियत होती है इन सर्वेस की? शायद जैसे कि कैसा भी बड़ी ये डिटेल से इन्होंने इस पर रोशनी डाली है। एक तो हमें नहीं आज तक इसकी मेथोडोलॉजी का हमें नहीं पता चला कि किस तरह सर्वे किया जाता है। इस पर मुझे याद है कि हमारे बहुत बड़े एक बड़े सहाफी थे अब्बास अतर साहब, उन्होंने कई दफा इस पे कॉलम लिखे कि ये कौन से लोग हैं, किस तरह के लोग हैं जो हमें कभी मिलने नहीं आते। कभी मेरा ख्याल काजी साहब के पास कोई लेटर नहीं आया होगा, कभी आपको किसी ने नहीं पूछा होगा। मैं अस्करी साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, मेरा ख्याल उनसे कभी ये आके किसी ने नहीं पूछा होगा। तो कौन से लोग हैं, कहाँ पे बैठ के सर्वे किया जाता है? एक हमें फिगर दे दिया जाता है, 20,000 है, 15,000 है, 10,000 है, 18 करोड़ की आबादी।
रऊफ क्लासर साहब की आवाज में कुछ टेक्निकल जो है वो मसला आ रहा है। हम हसन अस्करी साहब से बात हसन कर अस्करी लेते साहब, हैं। हसन अस्करी साहब, आप क्या समझते हैं जो सर्विस दिए जाते हैं लोगों पर मुश्तमिल, लोगों की जो राय बताई जाती है सियासी लीडर्स के मुतालिक, उनकी कारकर्दगी से मुतालिक, इसमें कितना यकीन किया जाए? देखिए, सिर्फ एक सर्वे के नतीजे को देख के आप फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वे के साथ जो बाकी फैक्ट्स होते हैं, जो आप परसीव करते हैं, देखते हैं, उनको साथ मिलाना पड़ता है। क्योंकि सर्वे की जो लिमिटेशन होती है, एक तो ये है कि आपने सैंपल जो है, यानी कितने लोगों से आपने सवाल किया, वो सैंपल कितना रिप्रेजेंटेटिव है पूरे मुल्क का। एक तो मसला सर्वे में, हर सर्वे में होता है ये मसला। दूसरा फिर ये है कि सर्वे में सवाल किस किस्म के आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि सवाल कंस्ट्रक्ट करके आप जवाब जो है लोगों के मुंह में डाल सकते हैं। ये भी एक बड़ी टेक्निक होती है कि सवाल ऐसा करें कि जवाब आपको खास मिले। ये जो सर्वे है, ये लोगों की कारकर्दगी पर है, ये लीडर्स की कारकर्दगी पर है, मईशत पे है, इनकी मकबूलियत में है, मकबूलियत की कमी पे है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें यह है कि अगर बाकी फैक्ट्स इसके साथ जो इससे कोइंसाइड करते हैं तो उस हद तक आप इसको वैलिड समझ सकते हैं। लेकिन यह है कि सिर्फ एक सर्वे की बुनियाद पे इस राय को आप हतमी ना समझिए। एक ओपिनियन है, एक ओपिनियन का ट्रेंड। अच्छा अस्करी साहब, ये बताइए कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप लोगों के मुंह में जवाब भी डाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए, इस पे एक जरा वजाहत कीजिएगा वो कैसे, और साथ ये कि 2600 लोग जो हैं, ये कैसे हम डिटरमिन करते हैं कि वो सारी सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वो, ये क्या इसकी कोई टेक्निक है साइंटिफिक? देखिए, इसके लिए एक तरीकाकार होता है जिसको हम कहते हैं सैंपलिंग करना। अब हमें नहीं मालूम इस तंजीम ने जो सर्वे किया है, और ये तंजीम सर्वे तो करती रहती है, कि इनका जो सैंपल है कितना रिप्रेजेंटेटिव है पूरे मुल्क का। और ये काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि अवाम इतनी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो तो उसमें से सैंपल क्रिएट करना कोई इतना आसान नहीं होता। कौन लोग हैं या किसी खास तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, ये बड़ा मुश्किल जो है वो सवाल होता है। तो इसलिए मेरे नजदीक सिर्फ एक सर्वे पे मैं कभी रिलाई नहीं करूंगा। अच्छा हसन अस्करी साहब, सूबों के लेवल पर, सूबों की सतह पर अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि वज़ीर आला की कारकर्दगी में मियां शहबाज शरीफ की पंजाब में कारकर्दगी सबसे बेहतर रही, और वज़ीर आला सिंध को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। अगर थर की सूरत हाल देखें तो क्या आपको ठीक लगता है? और जिस तरह पंजाब में काम किए जा रहे हैं तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सर्वे के जो रिजल्ट हैं ये ठीक हैं? देखिए, सर्वे के मैंने अभी अर्ज किया ना कि बाकी जो फैक्ट्स हैं जो आप देखते हैं उनको भी सामने रखिए, एक सर्वे के रिजल्ट को भी सामने रखिए, और फिर उसको मिला के आप देख सकते हैं। और फिर यह है कि सर्वे के ट्रेंड्स जो है वो बदलते रहते हैं, सिर्फ एक सर्वे पे आप रिलाई ना करें। ये अस्करी साहब, एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप ये बताइए, मैं अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि आप ज़ाहिर देखते हैं और थोड़ी थोड़ी तब्दीली को मॉनिटर करते हैं, सर्वे के रिजल्ट्स देखें और ये जो जिंदगी पिछले 8-9 माह से हम बसर कर रहे हैं, तो कितनी कंपैटिबिलिटी है इन दोनों में? देखिए, उनमें चंद एक बातों में एक ट्रेंड तो आपको नजर आएगा कि पॉपुलैरिटी जो है वो कम हुई है, कितनी हुई है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं जाती तौर पर जो हमारे यहाँ सर्वे होते हैं पाकिस्तान में, उनको कोई खास ज्यादा अहमियत नहीं देता। हाँ, पढ़ लेता हूँ, चलिए अंदाजा हो गया कुछ लोगों ने इसको इस तरह सोचा है, लेकिन सर्वे को मैं ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा अपनी एनालिसिस के अंदर। सिर्फ एक राय को, उसको सिर्फ एक राय समझूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अच्छे सर्वे का म्यार क्या होना चाहिए, पैमाना क्या होना चाहिए कि हम कह सकें कि ये सर्वे बिल्कुल ठीक है, अवामी राय इसमें ठीक और हकायक पर मबनी लगती है? क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? एक गलती का मार्जिन होता है, मार्जिन ऑफ एरर जिसको हम सर्वे में कहते हैं। और सर्वे उस वक्त सही होता है जब आप एक सीरीज ऑफ सर्वे करते हैं, आज किया, 3 महीने के बाद किया, फिर 3 महीने के बाद किया। तो अगर उस सीरीज ऑफ सर्वे से एक ट्रेंड बने तब तो आप कह सकते हैं। दूसरा ये है कि जो सर्वे कंपनी करती है उसको लाजिम है कि वो अपने सैंपल को एक्सप्लेन करे, बताए कि इसमें जो लोग शामिल किए गए हैं वो कौन थे, किस किस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, सूबों को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी तफसील हमारे पास कभी नहीं आती इस तंजीम की तरफ से, सिर्फ रिजल्ट हमारे पास आते हैं। सवाल क्या किए गए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं एक ही जो है सवाल को डिफरेंट एंगल में करके 2 रिजल्ट आपको प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, हसन अस्करी साहब हमारे साथ रहें। हम रऊफ क्लासर साहब के पास भी चलते हैं। क्लासर साहब, आपको आवाज ठीक तरह से आ रही है? जी साहब, मुझे आवाज आ रही है। जी, अब बताइएगा कि आप इन सर्विस को कैसे देखते हैं?
पहले जैसे भी बात हो रही थी कि मैं तो इन सर्वेज को अगर ईमानदारी से मुझसे पूछे मैंने तो कभी क्रेडिबल नहीं समझा। उसके रीजन मैं वही बता रहा हूँ कि 18 करोड़ के लोगों में से अगर आप 5,000 10,000 लोगों से एक राय लेके तो क्रेडिबल नहीं कहने जा सकते। पर्टिकुलरली जो मेरा इतराज हमेशा इस पर रहा है कि अर्बन बेस्ड आप सर्वे करते हैं, 60% से ज्यादा लोग तो आपके रूरल आपके एरियाज में रहते हैं, जिनके मसाइल, जिनकी चीजें, जिनके असल इश्यूज है मैं समझता हूँ और जिनके दुख है। और कई दफा हमने अपने ये शोज में दिखाया भी है, स्टोरीज हमने दिखाई हैं और अकाली साहब होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो स्टोरीज लेके आते रहे, जिससे पता चलता है कि जो आपकी गुड गवर्नेंस के यहाँ पे दावे किए जाते हैं अभी तक वहां पे पहुंचे नहीं है, इनके ट्रिकल डाउन इनका इफेक्ट नहीं हुआ। और कायद साहब की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को, जो शहबाज शरीफ साहब की जो अच्छी चीज है, इनके पास हमेशा से अच्छे मीडिया मैनेजर्स रहे हैं जिनको सेल करना चाहते हैं, वो सेल करना जानते हैं। प्रोडक्ट उनको मिल जाती है और बैठ के प्रोडक्ट को वो अच्छे तरीके से पॉलिश करते हैं, उसको फिर उसकी ट्रिमिंग करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं मार्केट में लोगों को और इस तरह पेश किया जाता है। सिर्फ उन्होंने अब ये देख रहे हैं पंजाब में 36 वहां पे डिस्ट्रिक्ट हैं, एक उन्होंने लाहौर शहर को उठाया है और पूरा उसको मॉडल बनाया कि पूरे का पूरा उन्होंने जो 35 वहां पे डिस्ट्रिक्ट है उनको ये शो कर दिया है कि अगर आप लोगों ने हमें वोट दिए तो शायद मुमकिन है आज से 5 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद शायद आपके शहर की बारी भी आ जाए। वो मेरा ख्याल है एक सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट है और जिसका फायदा हमेशा से पंजाब हुकूमत उठाती रही है। इस तरह के सर्वे उन्हीं के हक में आते रहे और हमने इलेक्शन से पहले भी देखे थे, आपको याद होगा इसी तरह के सर्वे आ रहे थे जिस पर एतराजात भी हो रहे थे। हालांकि जनरली कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान जो है वो बहुत पॉपुलर है और उनकी पार्टी को ज्यादा से हो सकता है उनको वोट्स मिले। मीडिया की हद तक आपको आप ग्राउंड में भी लोग नजर आते थे उनके जलसे जुलूसों में और उनके खिलाफ तनकीद भी होती थी कि लोग जलसे जुलूसों में तो जाते इमरान खान को, लेकिन वोट जो है वो पीपल्स पार्टी और पीपल नवाज को देते हैं। लेकिन पहली दफा हमने देखा कि लोगों ने जाकर इमरान खान को वोट डाले भी सही। और मेरी भी बहुत सारे लोगों से बात होती थी कि 10 में से 8 लोग तो यही कहते थे कि हम इमरान खान को वोट डाल के आ रहे हैं, लेकिन बाद में जो नतीजा है सामने है, जिससे पंचर की बातें हुई है, बड़ी लंबी कहानी है, फारूक मलिक को हटाया गया। हम स्टोरीज लेकर आते रहते हैं केपीके में जो सूरत हाल है, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर की, इस सर्वे में भी कहा गया है कि इमरान खान की मकबूलियत में 5% कमी हुई है। तो क्या ये हम ठीक समझे इस बात को? इसमें मेरा ख्याल इमरान खान ने ये बात खुद भी मानी थी, उनके अपने हामी भी हैं वो मानेंगे कि 2-3 इमरान खान की मेरा ख्याल चीजें हैं जिस वजह से वो शायद लोगों की तवक्कुआत तो पूरा नहीं उतर रहे। एक तो पर्टिकुलरली जो उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे किए थे कि हम शायद रातों रात चीजें ठीक कर देंगे, वो चीजें तो ऑफ कोर्स रातों रात ठीक नहीं हो सकती थी। एक उनका बहुत बड़ा वादा था, वो कहते हैं हम ड्रोन अटैक्स को हम बंद करवाएंगे, वो उन्होंने बड़ी हद तक अगर वो क्रेडिट इसका लेना चाहते हैं वो ले लें। एक अब बड़ा उनका नारा था कि हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के जो इलेक्शन हैं हम 3 महीने के अंदर करवा देंगे, वो भी आपके सामने नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे आप कह रहे हैं अभी तक उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे। और पर्टिकुलर जो नेशनल लेवल की उनकी पॉलिसी रही है, परफॉर्मेंस में तो वो पार्लियामेंट में जो रही है वो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के लिए मायूस कौन है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इनके एमएलए अगर मुझसे पूछें तो इनके एमएलए की परफॉर्मेंस जहाँ पे आप उस नेशनल असेंबली में देते हैं, एक उसमें असद उमर थे और डॉक्टर आरिफ अलवी हैं जो अप टू द मार्क आप कह सकते हैं कि तैयारी करके जाते हैं हाउस में। अदरवाइज इनके पास 34 या 30 से ज्यादा सीट्स हैं, ये अच्छे खासे इश्यूज बना सकते थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज हैं। लेकिन इमरान खान जो है अपनी ना तजर्बाकार जो टीम की वजह से वो रिजल्ट मेरा ख्याल नहीं ले सके जो उन्होंने वादे किए थे, लोगों को उम्मीदें दिलाई कि लोगों को ये शायद एहसास होता है कि इमरान खान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का और नवाज शरीफ का एक तरफ अलायंस है करप्शन के। एक अस्करी साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं, जरा आप भी सुनिएगा। अस्करी साहब हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल। अस्करी साहब, मैं एक स्टोरी कर रहा था और ये तो वेस्ट की बाबत थी कि जो थिंक टैंक्स हैं, जो सर्वे करने वाले हैं, इनकी जो फंडिंग आती है कहीं ना कहीं से तो पैसे आते हैं, जाहिर है, और पैसे आपको पता है मुफ्त नहीं आया करते। तो आलमी तौर पे भी मैं देख रहा था कि जो वेस्ट में उनके यहाँ जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो अपने कुछ मर्जी के मुताबिक, ये गार्डियन का पॉइंट ऑफ व्यू था, उनकी स्टोरी थी। तो ये कैसे इंश्योर किया जाए कि ये अगर करें काम तो बिल्कुल ऐसे करें जैसे बिल्कुल एक गैर जानबदार इदारे हो सकते हैं, या मुमकिन है कि इस तरह के इदारे गैर जानबदार हो सके? देखिए, सर्वेज में अक्सर बायसेस जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं और आपकी बात सही है कि बाज दफा सर्वे जो है इस अंदाज में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि खास रिजल्ट्स जो हैं वो आप प्रोड्यूस करें। एक प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा भी सर्वे हो सकता है। तो ये चीजें फिर जो एनालिस्ट होते हैं उनको ये देखना पड़ता है कि ये तंजीम क्या है, इसने पीछे काम क्या किया है, इनके लिंकेजेस क्या हैं, इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, दूसरे पॉलिटिकल लिंकेजेस क्या हैं,
साइंटिफिक बेसिस पे भी इसको जज किया जाता है। ये सारी चीजें उस वक्त जज की जा सकती है जब फैक्ट्स आपके सामने हो, लेकिन सर्वेज जो है वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब आपका। कैसा मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आटा मिल मालिकान ने आज से हड़ताल का ऐलान कर दिया है और इनकी और हुकूमत के दरमियान जो ये जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, इससे नुकसान तो आम आवाम को ही होगा। वजह क्या है, सारा मामला क्या है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब कुछ बात करते हैं कि फ्लोर मिल्स ने आज से हड़ताल का ऐलान किया गया और तवक्को की जा रही है कि जो फ्लोर मिल्स मालिकान है इनको नजरबंद कर दिया जाए और इनकी जो मिलें हैं वहां पर हुकूमती जो एहलकार हैं, सरकारी अमला तैनात कर दिया जाए। इनके बीच की आपस की लड़ाई क्या है और इसमें से जो नुकसान है वो गरीब आदमी को होगा, मतवसत तबके को होगा। जाहिद आबिद हमारे साथ है, मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जाहिद, इनकी लड़ाई क्या है, वजह क्या है, ये सारा मामला क्या है? शाजिया, ये फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और पंजाब फूड अथॉरिटी का तनाजा गुज़श्ता चंद माह से चल रहा था, जो कि अब शिद्दत अख्तियार कर गया है। इसमें जब से पंजाब फूड अथॉरिटी बनी है तो होटलों और दीगर खाने पीने वाली जगहों पर छापे मार के वहां पर म्यार वगैरह चेक करते हैं अशिया का, जिसके बाद इन्होंने फ्लोर मिल्स का भी रुख किया और वहां से सैंपलिंग लेकर बाकायदा चेकिंग की जाने लगी आटे की, जिस पर फ्लोर मिल्स की जानिब से शदीद एहतिजाज किया गया। उनका मौक़िफ़ ये है उनका कि हम महकमा खुराक के साथ अटैच हैं, तो इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी को अख्तियार नहीं है कि हमारे साथ कोई किसी किस्म की चेकिंग करे। जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी का ये भी कहना है कि वो 50,000 रुपया दें और अपना एक लाइसेंस लेकर बाकायदा रजिस्टर्ड हो पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ, जिसके बाद वहां पर बाकायदा कार्रवाई की जा सके और जो आटे का म्यार है उसको यकीनी बनाया जा सके, जिस पर यह तनाजा अब शिद्दत अख्तियार कर गया है। और पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आज से जो है मुकम्मल वक्त के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया। तो इनकी आटे की जो सप्लाई है, आटे का कोटा कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा और जिसके बाद बहरान मजीद शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। जी, जहाँ तक कोटे का सिलसिला है तो ये चूंकि गंदम की कटाई का मौसम आमतौर पर शुरू हो चुका होता है, तो इसलिए इस मौसम में वैसे भी कोटे की इतनी ज्यादा जरूरत रहती नहीं। ओपन मार्केट में वाफर गंदम मौजूद होती है, लेकिन इस दफा चूंकि थोड़ा सा लेट हो गया ये सीजन, जिसकी वजह से शायद 15। ये बताइएगा, ये अगर शार्टेज ये अगर रोकते हैं सप्लाई तो शार्टेजेस का खतरा है, कीमतों में इजाफे की बात भी हो रही है अगर आवाम के नुक्ते नजर से देखें तो। जी कई साहब, अगर हम किल्लत की बात करें तो बड़े हैरानकुन तौर पर ये किल्लत गुज़श्ता भी 8 से 10 दिन से जारी है और हुकूमत की जानिब से इसका अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि वजीर मौसूफ का यही कहना है कि पंजाब में आटा वाफर मकदार में मौजूद है। लेकिन जो आटे के थैले हमें लाहौर शहर की हद तक भी जो सूरत है वो यहाँ पर दुकानों पर अब आटे का थैला तकरीबन नायाब हो चुका है और लोग जो वो पहले ही चक्की का आटा खरीद कर खा रहे हैं, जो कि तकरीबन 52 रुपए फी किलो उन्हें अच्छा जाहिद, कहा जा रहा है कि हुकूमत पहला ऑप्शन जो है वो मालिकान से मुज़ाकरात के तौर पर इस्तेमाल करेगी और जो नून लीग से वाबस्ता है उन्हें मिडिल मैन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बहरान पैदा ना हो, लोगों के लिए मुश्किलात ना हो। जी लाजमी तौर पर इसका तनाज़े का हल जो है यकीनी तौर पर 1 या 2 दिन में निकल आएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि नून लीग की जो हमेशा से हिकमत मिल रही है कि पहले एक इशू को बिल्कुल पीक पे ले जाके फिर उसका मुज़ाकरात वगैरह पे आते हैं, तो वही सूरत यहाँ नजर आ रही है। हालांकि ये सूरत गुज़श्ता 1 हफ्ते से जारी थी और फ्लोर मिलों की जानिब से बाकायदा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। अब क्योंकि हड़ताल हो चुकी है तो आवाम को मुश्किलात होंगी आएगी और मुज़ाकरात करने के बाद मामला ठीक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद आपका। वो तो कह रहे हैं कि फूड अथॉरिटी होनी नहीं चाहिए, जबकि फूड अथॉरिटी चेक एंड बैलेंस रखती है, पता चलता है कि आप क्वालिटी क्या दे रहे हैं मार्केट में। हाँ यही है, लेकिन हम तो आवाम के नुक्ते नजर से देखते हैं ठीक किया। अभी ये भी हम कल इसका फॉलो अप लेंगे, क्या जो वो हुए थे जो सैंपल्स लिए थे वो कैसे निकले या कैसे नहीं निकले। बहरहाल सरकार को चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी या हफ्ते का आटा खरीदता है या 1 दिन का खरीदता है, तो वो अगर महंगा ले रहा है तो मेरे ख्याल में उसका इस्तेसाल हो रहा होगा। क्लास साहब आप कहेंगे इस पर कुछ? जो फ्लोर मिल्स मालिकान है ये तो बिल्कुल वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, उन्होंने अपनी मिलें बंद कर देंगे, आटा मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे। शायद मेरा ख्याल है आपने बड़ा ये खूबसूरत सवाल उठाया, इस पर काजी साहब जरूर थोड़ा सा इस बहस को आगे लेके बढ़े हैं कि ये क्या यहाँ पे ये ट्रेंड आ चुका है, ये क्या कल्चर हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया। ठीक है, हुकूमतों पे हम भी तनकीद करते रहते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब पे, नून लीग पे हमारे भी बहुत सारे क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं, लेकिन बात चीजें वो ठीक कर रहे होते हैं। अगर पंजाब हुकूमत इनको रेगुलेट करना चाहती है, क्वालिटी इनकी चेक करना चाहती है, तो ये हड़ताल पे चले जाते हैं। ये नया कल्चर यहाँ पे मेरा ख्याल पैदा हो रहा है कि डेली हम देखते हैं पंजाब में
रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई यहाँ पे आपकी हड़ताल शुरू हो जाएगी, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी। ये बहुत जरूरी काम है, इस पर पंजाब हुकूमत को बिल्कुल बैकआउट नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि इनकी गुंडागर्दी वाला स्टाइल है, इनकी ब्लैक मेलिंग जो इस तरह करते हैं इदारे कि आप हमें रेगुलेट नहीं कर सकते, हम जो फूड डिपार्टमेंट के साथ अटैच है, फलां महकमा हमें आकर चेक नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ जितने भी ऑफिशियल हमारी ब्यूरोक्रेसी है, अगर ये ईमानदारी और थोड़ी सी कमिटमेंट के साथ और इनको पॉलिटिकल बैकिंग मिले, इनको चेक भी करना चाहिए। और आपकी जो और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फूड यहाँ पे अडल्ट्रेशन होती है, लोग बीमार होते हैं, लोग मुख्तलिफ डिजीज का शिकार हो रहे हैं। इस पर इनको बैकआउट ना ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए, ना इस पर रूलिंग लीड को करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आपको कहा कि क्वालिटी चेक करवाएं तो वो कहते हैं अगर कोई हमारे यहाँ पे आया, कोई यहाँ पे कोई हमारे डोमेन में प्रेमिस में यहाँ पे लोग हैं तो हम उनको मारेंगे या उनको आने नहीं देंगे। ये कल्चर मेरा ख्याल खत्म होना चाहिए। और इस पे आयरन हैंड के साथ इनको समझाने की जरूरत है कि हजूर ये बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। आप दुनिया के मुल्कों में सारे लोग आप यहाँ फिर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर देख रहे होंगे। ये मुमकिन ही नहीं है वहां पे कि जो फूड इंस्पेक्टर है या रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो जाए और वो चेक ना करें। और पर्टिकुलर फूड आइटम्स ये दुनिया में सोचे नहीं जा सकता कि उनमें कोई ना कोई सील कर देते हैं। मैंने खुद देखा अमेरिका में, लाइसेंस आपका कैंसिल कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं गाय साहब। तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस। अच्छा क्लास साहब, ये आजकल यहाँ एक बड़ी बहस चल रही है, इस पे बात करते हैं। मैं देख रहा था ये जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस था, ये पास भी हुआ नेशनल असेंबली से, अब ये सेनेट में जाएगा। सेनेट वाले कह रहे हैं हम पास नहीं होने देंगे। अच्छा, अब इसमें दो किस्म के आर्ग्यूमेंट है। एक आर्ग्यूमेंट तो ये जाहिर है इसमें कुछ ऐसी शिकें हैं कि जो बड़ी शक पड़ता है, बल्कि डर लगता है कि भाई ये मिस यूज हो सकती है। मिसाल के तौर पर 3 माह के लिए अगर आप शक पे बंदे को उठा लें तो अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। फिर शूट एट साइट की बातें हो रही हैं। इस पे जो फरतुल्ला बाबर है और पीपल्स पार्टी है, ये सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है, जरा इसको जरा मेरे ख्याल में एक मुनसिफाना तनाज़ुर में अगर देखें तो यूं कि अगर एक सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं है तो आप जितने कवानीन, उसमें कवानीन तो पहले भी मौजूद हैं, कौन सा जुर्म है जिसका यहाँ कानून मौजूद नहीं है? होता यहाँ ये है कि हम टेररिस्ट को पकड़ के लाते हैं कि जनाब इसने फलां को मारा है और सब के सामने मारा है, तो जज या तो फैसला नहीं देता या फैसला देने के बाद हिजरत कर जाता है यहाँ पे। तो बात यह है कि कवानीन इटसेल्फ कुछ नहीं होते। मुझे याद है कि ज़िया उल हक के दौर में खुद उसने आगे तकरीर में एक दफा कहा था, पब्लिकली उन्होंने कहा था कि जनाब मेरे दौर में तो करप्शन बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कवानीन सख्त, उन्होंने पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्लाम को इस्तेमाल किया, ये सब जानते हैं, और आज तक हम वो उस कानून को सीधा नहीं कर सके। तो अब ये है कि अगर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव नहीं बनाते तो कानून आप ले आते हैं। तो फिर वो मुझे याद है ये थानों में जाना आपने तो कहना अच्छा भाई ये तो आपके बच्चे पे तो लगेगी अब हदूद ऑर्डिनेंस, हदूद ऑर्डिनेंस से लोग कांपना शुरू हो जाते थे। तो यू विल गेट देम सेल इवन देयर लैंड्स, और मकान बेच के भी आपको पैसे देंगे। तो ये ना हो। ये क्लास साहब से इम्तियाज गोल हमारे साथ लाइन। जी हाँ, इम्तियाज साहब से बात करते हैं। इम्तियाज साहब, जब अभी कायद साहब बात कर रहे हैं कि जब ऑलरेडी हर जराइम के, हर जुर्म के कवानीन मौजूद हैं, उन पर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं तो ऐसे कवानीन का क्या फायदा? एक नई बहस छिड़ गई, अब सेनेट में मंजूर होगा नहीं होगा, एक नया मसला बन गया। जी बिलाशुबा एक मसला तो है, उसमें आप बुनियादी बात यही है कि जिस कदर सख्त कवानीन आप ले आए, जब तक उन पर अमल दरामद कराने वालों के अंदर इखलास नहीं होगा उस वक्त तक इन कवानीन का कोई फायदा नहीं है। और मेरी मुराद इस वक्त न सिर्फ पुलिस से है, प्रोसिक्यूशन से है, बल्कि सियासी अशराफिया से भी है कि वो अपने लिए जो कवानीन जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वो तो अपनी एनरिचमेंट के लिए है, लेकिन सही जो कानून का इतलाक होता है वो आम आदमी पे होता है, भले उसने एक 100 रुपए की चोरी की हो या किसी को एक थप्पड़ लगाया हो। तो उसमें बुनियादी बात इखलास की है। और ये कई मौके पे बात हुई है कि जब तक बिला तफरीक, बिला इम्तियाज कानून की अमलदारी नहीं होगी उस वक्त तक बहुत मुश्किल होगा हुकूक इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुल्क में तमाम लोगों के साथ इंसाफ करना। आप समझते हैं कि ये जो बनाया जा रहा है इससे इम्प्लीमेंटेशन अगर करवाया जाता है तो जराइम की शरह में बहुत हद तक कमी हो जाएगी? बहुत जरूरी हो गया ये कवानीन बनाना। देखिए, जराइम की शरह में उस वक्त कमी होगी जब आपके पास एक ऐसा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होगा जिसको तमाम कवानीन मालूम हो, और जो बुनियादी तौर पे ये समझने की जो FIR जिसे कहा जाता है वो दर्ज करने के लिए जब तक कवानीन वाज़े तौर पे नहीं होंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे, जब तक SHO पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उस वक्त तक यूं ही बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुकदमे बनते रहेंगे और इंसाफ किसी को नहीं मिल पाएगा। तो
جب تک FIR کا نظام درست نہیں ہوتا. اب مثال لے لیجئے کہ 9 مہینے کے بچے کے لیے بھی آپ کو ضمانتی بانڈ داخل کرنا پڑا تھا. تو اس نظام کی سب سے بڑی خامی اس کیس کی صورت میں سامنے آئی. اور حالانکہ ایک ماہ سے لے کے 7 سال تک کے بچے کے لیے بالکل جنرل قوانین یعنی استثنا موجود ہے. پھر 7 سال سے 15 سال کے بچے کے لیے وہ جو پولیس آفیسر ہے, وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا, اس نے وہ استثنا کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیوں پاکستان کو مثال کے طور پہ دنیا بھر میں ایک مذہب کا خیز ایک ملک کے طور پہ انہوں نے ایسے جتنے بھی قوانین بنا لیے جائیں, جتنے بھی بل پاس کروا لیے جائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا. مجھے ناظرین پروگرام میں بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسز اب آپ کی طرف آتی ہوں. سلمان فاروقی اور FPSC کے چیئرمین نے کیا مل کر گھپلا کیا, کیا نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے؟ شاید یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی میرے لیے تو انتہائی ڈپریسنگ اسٹوری ہے. میں آپ کو بتاؤں میں کہ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں. اگر وہ سلمان فاروقی صاحب انتہائی آنریبل انسان ہیں, وہ اس کے بعد اسکینڈل کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں رہ جائیں گے قابل احترام. اور دوسرے جو بڑا نام ہے وہ ہمارے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو چیئرمین ہیں آصف آزاد ملک صاحب, ان دونوں کا باقی بڑے نام ہے. اس میں ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس ان ناموں کی کہ انہوں نے 2012 میں جا کے ایک لیٹر لکھا فائنانس منسٹری کو, اور اس میں یہ کہا انہوں نے, اور یہ صدر زرداری صاحب اس وقت ایوان صدر میں تھے, رپورٹ اس کی انکوائری رپورٹ اب اس کی بنی جو میرے پاس موجود ہے ساری کی ساری ہے, اور انویسٹیگیشن اس کی چل رہی تھی چپکے سے. اس میں انکشاف کیا گیا کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا فائنانس منسٹری کو اور کہا گیا کہ حضور ہمارے یہاں پہ جو صدر زرداری صاحب غریبوں کو کچھ پیسے ان میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اس فنڈ کا مقصد ہوتا ہے کہ بہت سارے آرگنائزیشن جن کو یہاں ٹیکسز ہے, پبلک کے یہ ٹیکسز ہے, اس میں اسکول ہیں, چیریٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں, یا وہاں پہ غریب غربا جو ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں, صدر صاحب دیتے ہیں, ڈونیشن دیتے ہیں, بار ایسوسیشن وغیرہ. ایک انہوں نے مد رکھی ہوئی تھی اس میں. کل 14 کروڑ روپیہ فائنانس منسٹری سے لیا گیا, 14 کروڑ روپیہ. وہ 14 کروڑ روپیہ انہوں نے بیٹھ کے ایوان صدر میں انہوں نے کہا 2 عیدیں ہیں یہاں پہ, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. 19 اکتوبر 2012 کو ایک لیٹر لکھا سلمان فاروقی صاحب نے کہ عید آ رہی ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے جناب ان کو عید کے نام پہ 10 لاکھ روپے عیدی دی سلمان فاروقی صاحب کو. اور اسپیشل سیکرٹری ہیں آصف آزاد ملک صاحب, اس وقت ایوان صدر میں تھے, بعد میں یہ فیڈرل سروسز کے جا کے چیئرمین لگے. ان کو پتا چلا کہ عیدی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی. انہوں نے کہا حضور کو پیسے ہمیں بھی دیں, ہم بھی غریب لوگ ہیں. اسی غریبوں والے فنڈ میں سے 10 لاکھ روپے ان کو عیدی دی گئی. اچھا, انہوں نے عیدی اپنے لیے لی, ان میں صرف 6 دن اپنے لیے. یہ عیدی بقاعدہ لکھا ہوا ہے, میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں. اگر یہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں, بڑے امتحان ریبل لوگ ہوں گے تو آ کے چیلنج کریں. آگے سنتے ہیں 5 دن بعد دوبارہ 19 اکتوبر 2012 کو پہلی عیدی لی عید الفطر کی, اور انہوں نے جا کے 24 اکتوبر کو پھر فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے پیسے کی عیدی ہمیں ایڈوانس میں دے دیں. 10 لاکھ روپے انہوں نے وہ عیدی لے لی, ایڈوانس لی انہوں نے عید الاضحیٰ کی. 5 دن بعد انہوں نے دوسری عید منا لی. اس کے بعد انہوں نے کہا یہاں پہ ڈی سمٹ ہو رہی ہے, ڈی سمٹ کا علیحدہ 10 لاکھ روپے لے لیا انہوں نے سلمان فاروقی صاحب نے, اور دوسرے صاحب ہیں ساتھ ان کے. اور پلس انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ بڑے غریب لوگ ہیں, ہماری آپ مزید مدد کریں. ٹوٹل سلمان فاروقی صاحب نے جو بعد سیکرٹری جنرل تھے, اسٹیٹس آف منسٹر تھا فیڈرل, انہوں نے 42 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے غریبوں کے فنڈ میں سے, اور 26 لاکھ روپے جو ہے آصف آزاد ملک صاحب جو چیئرمین ہیں اس کے FPSC کے, انہوں نے کرے. وہاں پہ جب پتہ چلا کہ لوٹ مار مچ کی ہے, یہاں پہ عیدیں وغیرہ تقسیم ہو رہی ہیں, تو لیگل کنسلٹنٹ نے کہا کہ جناب علی یہ کیا کام ہو رہا ہے, اب 12 اور چوری چھپ کے آپ یہاں پہ عیدیں وصول کر رہے ہیں اور ہمیں پیسے نہیں دے رہے. تو جناب ان کو بھی وہاں پہ 26 لاکھ روپے اس میں لیگل کنسلٹنٹ نے ملا. اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری کو پتہ چلا کہ یہاں عیدی بانٹی کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا حصہ تو عیدی کا, ان کو 17 لاکھ روپیہ دیا گیا. اور جو پتہ چلتا ہے کہ ایوان صدر میں کہ عیدیاں بانٹ رہی ہیں, اور سب سے زیادہ بڑے جو پیسے ہیں وہ سلمان فاروقی نے اور یہاں پہ آصف آزاد ملک نے لیے. تو ٹوٹل 14 کروڑ روپے کا فنڈ آیا تھا غریبوں کے لیے اور چیریٹی کے انسٹیٹیوشن کے لیے, وہ سلمان فاروقی. اس کے بعد
आसिफ आजाद मलिक साहब, इनके लीगल कंसल्टेंट, और दर्जनों ग्रेड 21, 20, 18, 17, और फिर इसके बाद वो कह रहे पंजाब में अन्नी मच गई थी, इन्होंने अन्नी मचाई और वहाँ ईदी के नाम पे जो गरीबों के लिए पैसा आया था उसको टोटल 14 करोड़ रुपया इन्होंने आपस में बांटा है, अपने अकाउंट्स में इन्होंने ट्रांसफर किया है। ये पूरी मुख्तसर से मैं स्टोरी बना रहा हूँ। साहब इस मुल्क में साहब देखें, ये नादार और मुफलिस लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो इन्होंने अगर थोड़े बहुत विचारों ने ले लिए तो मामला ये है कि सही फरमा रहे हैं आप। हाँ, एक और भी सुन लें, मैं बात भूलना तो कैसे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सलमान फरूकी साहब ने कहा कि मैंने अपनी मिसेज का इलाज करवाना है वहाँ पे यूएसए में, वो तो लाख रुपया इनकी मिसेज के इलाज के लिए भी इनको दिया गया। उसी फंड में से वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा कलासरा साहब। नहीं सर, वो राजा परवेज अशरफ ने दिए, राजा परवेज साहब ने दिए थे और मुझे उन्होंने दिए थे। और अभी भी मेरे एक सोर्स ने मुझे वजीर आज़म हाउस में बताया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर हमें खत लिखा है कि जनाब के पैसे कम पड़ गए, मुझे मजीद पैसे दिए गए, नवाज शरीफ साहब से मांगे हैं। और नवाज शरीफ साहब इनसे नाराज थे, अगर आपको याद हो, वो ये सलमान फरूकी साहब से, और उसकी नाराजगी को बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनके एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सलमान फरूकी साहब ने उनका जाकर मिन्नत तरला किया कि जनाब नवाज शरीफ साहब मुझसे नाराज है, मुझ बेचारे से मेरी सुलह करा दें, क्योंकि वो विफाकी मौसम का ऑफिस है उनके पास है। उन्होंने जाकर ब्यूरोक्रेट साहब ने जो बड़े मियाँ साहब के करीब हैं, अभी भी हैं, उन्होंने जाकर सलमान फरूकी की और मियाँ साहब की सुलह करवाई है। उस सुलह के बाद उनको दोबारा विफाकी मौसम के दफ्तर की इजाजत दीजिए, आप आए, लाखों की करोड़ों की लूट मार करने के बाद अभी उन्हें गरीबों को वो इंसाफ देने के लिए विफाकी मौसम के दफ्तर में बैठ गए। तो मियाँ साहब भी आजकल उनसे खुश हैं। जरदारी साहब के राइट हैंड थे, अपनी मिसेज के इलाज के लिए 40 लाख रुपए लिया और गरीबों के फंड में से 42 लाख उन्होंने ले लिया। आजकल बैठ कर इंसाफ तकसीम कर रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा शर्म आ रही है कि पैसे यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स जो हैं, जो फ्यूचर के सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए किसके जिन्हें काम लगाया गया, मलिक आसिफ आजाद, जिन्होंने बैठकर लाखों में हमारे सदर में गरीबों को फंड में से खाए हैं, उसने खाया, वो आजकल फ्यूचर की ब्यूरोक्रेसी में जो वो करके दे रहे हैं, लोगों को इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनके अखलाकियात को चेक कर रहे हैं। मतलब इस तरह का जो तमाशा बना के इस मुल्क में कैसे क्या क्या रोना रोज है, और ये बड़े लोग हैं जो हम लोग भी नहीं है, और विफाकी मौसम हैं, और दूसरे चेयरमैन FPSC हैं। क्लास साहब आप और हम अफसोस ही कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं। साहब अभी ये आपकी स्टोरी थी, आपने की थी, मैं ऐसे भी इसी के साथ ये भी चूंकि ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, जो बुलंद अख्तर राना साहब हैं, अब इसमें कुछ डेवलपमेंट और भी हुई है। और आपको अंदाजा ये तो हमें पता ही है 2011 अगस्त में लगाया गया था इनको पीपल्स पार्टी के दौर में, और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साबिक जो चेयरमैन थे चौधरी साहब, जो आजकल हमारे वजीर दाखिला हैं, तो वो इन्हीं की वजह से बताया जाता है कि वो शायद रिजाइन भी कर गए थे। तो अब मामला ये है कि अब ये एक डिपार्टमेंट जो उन्होंने बनाया है, ये बेसिकली ये स्टोरी ये कह रही है कि ये सबसर्वियंस या उसको सबसर्विएंट करने की कोशिश की जा रही है अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस को, फाइनेंस डिवीजन के। और खास तौर पर इसका वही जो आपने पॉइंट आउट किया था, कजिया वही है जो 500 अरब रुपया प्री ऑडिट के बगैर ही निकल गया। तो वो कहना ये है, इकोनॉमिस्ट का आज मैं देख रहा था, इवन डॉक्टर इशफाक असद साहब को देख रहा था, उन्होंने भी कहीं लिखा है या उन्हें कोट किया गया है कि इन इदारों को इंडिपेंडेंट रहने दे, क्योंकि बात यह है मसलन PPO है या ये जो आप तब्दीलियां कर रहे हैं, ये आपके जाने के बाद भी रहेंगी। मिसाल के तौर पे PPO भी मुझे याद आ गया, ये पॉलिटिकली जो है विक्टिमाइजेशन के लिए राइवल पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी इस्तेमाल होते रहे ना ऐसे कवानीन, तो आपने पावर से बाहर भी तो जाना है। सिमिलरली ये जो इन प्लेस है, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन रह गई हमारे यहाँ कि जो पैसे जा रहे हैं ये कहाँ, अव्वल तो यहाँ पे एक ऊधम मचा रहा माशी, हमने देखा माजी क्या हो और हाल क्या हो, खाया लोगों ने। ये जिस तरह क्रासा साहब ने स्टोरी की, कुछ पूछने वाला नहीं है, ज़कात ये लोग खा जाते हैं तो और क्या छोड़ेंगे। मगर मामला ये है कि ये जो थोड़े बहुत इन प्लेस हैं प्रोटेक्शन के, ये पैसा किसको जा रहा है, कितना देना है, बिजली कितनी उन्होंने भेजी थी, अंधेरा कितना भेजा था, अंधेरा कितने का पड़ रहा है, बिजली कितने की पड़ रही है। तो मेरे ख्याल में क्रासा साहब क्या कहेंगे, आपने पहले स्टोरी पे काम भी किया था। निकाय साहब, ये बड़ा मेरा ख्याल अहम आपने इश्यू उठाया है, और किसी को इस मुल्क में जमहूरियत की बात हम सब करते हैं, लेकिन कोई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन जो है उन पर सवालात उठाए जाएं कि कैसे 500 अरब रुपए के इन लोगों ने बगैर बिल्स को वेरीफाई किए बगैर अपनी कंपनीज को पैसे किए हैं, और स्टेट बैंक से बड़े रास्त इन्होंने वहां पर पेमेंट्स करवाई, जिसका जवाब इन्होंने मांगा है गवर्नर स्टेट बैंक से। उसके बाद अख्तर बुलंद राना के खिलाफ इंक्वायरी, प्रोपेगेंडा, उनके खिलाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने अलहदा एक अपनी छोटी सी कमेटी बना ली, जिसका मकसद यही था कि बुलंद अख्तर राना साहब जो है, नाम उनका वैसे अख्तर बुलंद राना साहब है, हम गलत कहते रहते हैं, बुलंद अख्तर राना जो है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। करने वाले कौन थे? पब्लिक अकाउंट्स
फरूकी वाले थे, गुस्सा क्या था कि आपने 500 रुपये का हमसे हिसाब मांगने की क्यों कोशिश की है। तो इस तरह की हरकतें जो है हमारे इदारे करते रहते। अभी देख रहे हैं सलमान फरूकी वाले और आसिफ हयात वाले, ना पार्लियामेंट में कोई आवाज उठाएगा, न जुडिशरी से कोई आपको आवाज सुनने में आएगी, न इस पर हम कोई इसको फर्दर फॉलो अप करेंगे। ये लोग ऐसे ही बैठ के टॉप पोजीशन पे बैठे रहेंगे। आप सोच सकते हो, अभी वहां पे एक स्कैंडल आया था यूके में, सेक्रेटरी को हटाया गया है, एक छोटा सा उनका एक्सपेंसेस का स्कैंडल था, वहां पे वजीर को इस्तीफा देना पड़ गया। ये जमहूरियत होती है। लोग जमहूरियत को गाली देना शुरू कर देते, ये नहीं देखते जमहूरियत बुरी चीज नहीं है, जो इस पर आके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो बुरे लोग हैं। जमहूरियत का फायदा जो आज सलमान फरूकी के खिलाफ, आज आसिफ आजाद के खिलाफ हम स्टैंडर्ड लेके आए डॉक्यूमेंट से पूरे। अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं रिपीट करें, इनके खिलाफ इंक्वायरीज करें और इनको डिसमिस किया जाए, ये जमहूरियत की ड्यूटी है। और इस पर कोई अदालत आप देखेंगे चीफ जस्टिस प्रकाश चौधरी साहब को, वो देखेंगे स्लो मोटो ले लेते हैं, वो देखेंगे बुला लेते हैं। आप ना कोई बुलाने वाला है, ना पार्लियामेंट में कोई है, ना आपके कोई आवाज नहीं उठाएगा, ना आपको दूसरे इंस्टीट्यूशन में होगा। इसी तरह और जो एक आध अख्तर बुलंद राना टाइप लोग अगर कोई खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको वो पब्लिक अकाउंट्स के लिए खुद शुरू हो जाती है कि आप लोग तगाबर हो, वो मजाक का जो हमने आपको शेयर किया हुआ है। और मेरा ख्याल है उस पर इनको डट जाना चाहिए अख्तर बुलंद राना को। इस तरह के हरबे, इस तरह के जो इनके दलती टैक्टर्स है हुकूमत इस्तेमाल करती रहती हैं। आप लोगों को इस मुल्क ने, कौम ने बहुत कुछ किया है, अब थोड़ा सा रिटर्न करें और ऐसे लोगों को एक्सपोज करें जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लासेस साहब आपका, कैसे साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।